Hello everyone, hope everyone is fine and preparation is going well. Today I am discuss with you the questions related to the structure of atom that is helpful for the Chandigarh TGT post as well as DSSP science post too. So hope you like this video and now come to the questions. First question is an isotone of 7632 germanium is. हमें पता है for the isotone the number of neutrons will be same and how you will calculate the neutrons by subtracting mass number and atomic number. Now 76 minus 32 is equals to 44. Similarly you can check in the options किस में आपका जो मास है वो कितना आ रहा है 44 आ रहा है. अगर आप चेक करोगे इन दिस ऑप्शन यू विल गेट 77 minus 33 that is 44. So correct answer is option B. Option B will be the correct answer. Now comes to the second question. The charge on an atom having 17 protons, 18 neutrons and 18 electrons. आप चार्ज कैसे निकालते हो? हमें पता होता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. बट यहाँ प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं 18 है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है. सो नेट चार्ज विल बी -1. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. In the third question, AIR service on Vividh Bharati is transmitted on 219 meter band. What is the transmission frequency? आपके पास wavelength दे रखी है, मीन्स लैम्डा दे रखा है, दैट इज़ 219 मीटर. And you have to calculate the frequency, that means V. And we know frequency और wavelength में relation क्या है, V is equals to C by lambda. Value of C is fixed, that is speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second and lambda is 219. After calculation you will get 1.3 into 10 raised to power 6 hertz, that is option A is the correct answer. Now fourth question, if 10 raised to power -17 joule of light energy is needed by the interior of human eye to see the object, मतलब हमें इतनी लाइट एनर्जी चाहिए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, देन यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट, कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स लगेंगे उसको देखने के लिए. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट n and we have energy that is 10 raised to power -17 joule as well as the wavelength that is 550 nanometer. We know the relation of energy and the photon. We know E is equals to NHV, right? अगर हम अब ये तो फ्रीक्वेंसी में, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है, C by lambda. दैट मीन्स फॉर्मूला यूज्ड हेयर इज E is equals to NHC by lambda. नाउ एन एक साइड रख लो, बाकी सारा कुछ एक साइड ले जाओ. E C upon lambda H. We know the value of E, we know the value of C, we know the value of lambda as well as we know the value of H. H is 6.6 into 10 raised to power -34, C is 3 into 10 raised to power 8, E is 10 raised to power -17 and lambda is 550 into 10 raised to power -9. As wavelength is given in nanometer, so we have to convert this nanometer into meters. So we multiply it with 10 raised to power -9. After putting the values and solving the question, you will get n is equals to 28. That means option B is the correct answer. Now fifth question, calculate the number of photons, same as the fourth question. So it's basically your homework. You have to do this at your home and tell me the answers in the comment section. Okay, easy question है, कोई as such typical नहीं है, सिंपल आपको पावर दे रखी है, टाइम दे रखा है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स. सिमिलरली आपने फॉर्मूला लगा देना एनर्जी का, HC by lambda. एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है सॉल्व करके. 10 आवर्स के लिए नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ फोटोन इन एक्स रीजन इज़ मोर एनर्जेटिक देन विजिबल रीजन. हमें नहीं पता एक्स रीजन कौन सा है, बस उन्होंने बोल दिया अगर फोटोन एक्स रीजन में होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू विजिबल रीजन. हमें पता है एनर्जी का रिलेशन किसके साथ, न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ. तो आप यहाँ फ्रीक्वेंसी के साथ देख लो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी एनर्जी भी कम होगी. तो अगर आप चेक करोगे स्पेक्ट्रम अपना, तो आप क्या देखते हो, गामा रे की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, देन एक्स रे, देन
UV रे, देन विजिबल, देन IR, देन माइक्रो, देन रेडियो। यही पढ़ते हैं हम। चेक फ्रॉम द ऑप्शंस। आपके पास क्या बोला उन्होंने, विजिबल रे से ज़्यादा हो। विजिबल रे से ज़्यादा हमारे पास 3 ही हैं, गामा रेज, एक्स रेज एंड यूवी रेज, और ऑप्शन में हमारे पास यूवी पड़ा, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है। कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें पता है ई क्या होता है, hc/λ, सो लैम्डा क्या हो जाएगा, hc/e। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट 6.204 into 10⁻⁻7 meter, that is A option is the correct answer. Now 8th question is the ionization energy of He plus is this, and we have to calculate the energy of first stationary orbit of Li2 positive. हमें पता है He के corresponding atomic number हमारा 2 है एंड Li के corresponding हमारा atomic number क्या है, 3 है। अगर आप देखो तो He पॉजिटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हमारे पास, एक रह गए। Li2 पॉजिटिव में भी हमारे पास कितने रह गए, एक रह गए। मतलब बेसिकली इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इट्स सिमिलर एज द हाइड्रोजन एटम, राइट। और हाइड्रोजन एटम के लिए हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, -13.6/n²। बट वो तब है जब हमने हाइड्रोजन का केस लेना। अभी हमारे पास यहाँ 2 केसेस है, एक हीलियम प्लस का और एक लिथियम 2 प्लस का। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, हर क्वेश्चन में आपके एप्लीकेबल हो जाएगी। वो ट्रिक क्या है, जिसकी एनर्जी हमें दे रखी है, पहले तो वो एनर्जी लिख लो एज सच, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना है। हमने यहाँ पे लिथियम 2 प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना था, तो उसका एटॉमिक नंबर आपने क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। और जिसका हमें गिवन है, जैसे हीलियम का गिवन था, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, नीचे लिखना है। इन दोनों की हमने क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। तो जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो जब आप सॉल्व करोगे 19.6 × 10⁻18 को 9/4 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 44.1 × 10⁻18, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो हाइड्रोजन जैसे रिजेंबल कर रहा है बट हाइड्रोजन के बारे में जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो आपने जिसके कॉरस्पॉन्डिंग पूछा है उसका एटॉमिक नंबर की स्क्वायर ऊपर लिख देनी है, और जिसका गिवन है उसके एटॉमिक नंबर की स्क्वायर आपने नीचे डिनोमिनेटर में लिख देनी है, इनटू जो आपको एनर्जी गिवन होगी आपने वो एनर्जी साथ में मल्टीप्लाई कर देनी है, और आपका क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा। क्लियर। आई होप ये ट्रिक आपको काम आएगी। बाकी क्योंकि कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव में हम जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे उतना हमारे लिए एडवांटेज होती है। सो इस ट्रिक को अपने दिमाग में रखना और ट्राई करना है इसके रिलेटेड और क्वेश्चंस कर सको, सो दैट आपको ये ट्रिक यूज़ करनी आ जाए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं, सिमिलर ट्रिक के साथ ही करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की दे रखी है, कॉरस्पॉन्डिंग लिथियम 2 प्लस के निकालनी है। लिथियम 2 प्लस मतलब सिमिलरली एज हाइड्रोजन एटम। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, जो एनर्जी गिवन है उसको पहले लिख लो, जिसका निकालना है उसके एटॉमिक नंबर की स्क्वायर ऊपर लिख दो। लिथियम का निकालना है, फिर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 की स्क्वायर क्या आ जाएगी, 9। आप ऐसे ही लिख लो 3 की स्क्वायर। नीचे जिसका दिया, किसका दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्क्वायर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो नीचे क्या आ जाएगी, 1 की स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 13.6 को 9 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन बी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now last question, a metallic ion M2 plus has electronic configuration 2, 8, 14। सबसे पहले आप देख लेते हैं हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 2 + 8 10, 10 + 14 24। दैट मीन्स 24 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं किसके कॉरस्पॉन्डिंग, जब M2 प्लस है। 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो चुके हैं हमारे। तो M के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 24 + 2 दैट इज़ 26 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास M मेटल में। एंड इट्स एटॉमिक वेट इज़ 56 AMU। दैट मीन्स जो मास नंबर दिया हुआ है वो आपको कितना दे रखा है, 56 दे रखा है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। हमें पता है न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, 56 - 26 दैट इज़ 30। सो 30 इज़ द करेक्ट आंसर।